مارننگ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں چاند نظر نہیں آیا، آج 30واں روزہ ہوگا۔ عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کہیں بھی چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ لاہور میں ایوان اوقاف میں چاند دیکھا گیا۔ ڈی جی مذہبی امور شاہد حسن کلیانی اور دیگر علماء شریک تھے۔ اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع ابر آلود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاف بھی رہا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کا چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم شوال المکرم 1447 ہجری 21 مارچ 2026 بروز ہوگی۔ عید پر اپنوں کے پاس پہنچنے کی دوڑ، پردیسیوں کی گھروں کو روانگی۔ جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں مسافروں کا رش لگ گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل، بتائیے گا جنرل بس اسٹینڈ پر کتنا رش ہے شہریوں کا؟ بالکل جی، لاہور شہر میں مقیم پردیسی عید الفطر کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ میں ملک کے مختلف اضلاع کو جانے والے مسافروں کا رش ہے۔ کراچی سے کشمیر تک جو بسیں ہیں وہ اس جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ سے روانہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اپنے پیاروں تک پہنچا رہی ہیں۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ وہ عید سے قبل بر وقت اپنے گھر پہنچ جائے اور عید کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ منا سکے۔ اس حوالے سے جنرل بس اسٹینڈ بادامی باغ انتظامیہ نے بھی مسافروں کی سہولیات کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ زائد کرایہ وصولی اور اوور لوڈنگ سمیت جو ہراسگی کی شکایات ہیں ان کے لیے یہاں پر شکایات سیل قائم کیا گیا ہے، جہاں پر ضلع انتظامیہ کا جو عملہ ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو مسافر حضرات ہیں ان کی جانب سے زائد کرایہ وصولی یا اوور لوڈنگ کی اتنی شکایات نہیں ہے، البتہ ڈیزل مہنگا ہونے کے باعث جو کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اور خاص کر دیہڑی دار مزدور طبقہ اور جو طلباء ہیں ان کا جو سفری بجٹ ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اضافی بسیں بھی لگا رکھی ہیں تمام روٹس پر، کیونکہ مسافروں کا یہاں پر رش ہے اور ہر ایک روٹ جو ہے وہ بیزی ہے، ہر روٹ پر بسیں جو ہیں وہ بھر کے جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے اضافی بسوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، اور مسافروں کو بر وقت ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے بھی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ اور کل چاند رات ہے، کل مزید رش ہوگا اور کل رات گئے تک جو مسافروں کی روانگی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ جی بالکل، ٹرانسپورٹر سے اضافی بسیں لگا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے رومیل الیاس، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید کی خوشبو بازاروں کی رونقیں عروج پر ہیں۔ میچنگ چوڑیوں اور جوتوں کی خریداری، لاہوری خواتین نے بازاروں میں ڈیرے ڈال دیے۔ لبرٹی مارکیٹ میں بھی عید شاپنگ کی روشنیوں سے منور ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، بتائے گا۔ آج ہی دیکھیں ایک دن باقی رہ گیا ہے اور شاپنگ جو ہے وہ تاحال ختم نہیں ہوئی ہے، اور بازاروں کی رونقیں جو ہیں وہ اس وقت بھی بحال ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہی ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ جو ایک دن باقی ہے اور جو خواتین کی شاپنگ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے کلیکشن کا، میچنگ کا، اور اسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مختلف دکانوں کے اوپر رش اس قدر زیادہ ہے اور بحث چل رہی ہے، ریٹ بہت چل رہی ہے۔ خواتین کوشش کر رہی ہیں کہ کم سے کم جو ہے وہ قیمت میں چیزیں خریدی جائیں، لیکن دکاندار بھی ہوشیار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخری دن ہے اور فیملیز نے جو ہے وہ شاپنگ کرنی ہی کرنی ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے وہ قیمتیں وصول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ ایک عید کی خوبصورتی بھی ہے۔ اور پورا مہینے رمضان کے بعد عید جس طرح سے ایک دن باقی رہ گیا، اور اسی سلسلے میں بڑی تعداد میں خواتین بچے جو ہیں وہ شاپنگ کرنے میں مصروف ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے، اور اس موقع پہ ان کا کہنا ہے کہ قیمتیں اگر زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ سال بعد عید آتی ہے اور اس کی جو خوشی ہوتی ہے، اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی ایکسائٹمنٹ کے لیے بازاروں کے اندر جو رونق لگی ہوتی ہے وہ بھی ایک خوبصورتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کرتا ہے بازاروں میں گھومنے کا، اور اسی لیے آج 12:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں، مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، اور بھرپور انداز میں عید کو سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔
बिल्कुल, खरीदारी का सिलसिला जारी है। तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक। जोहर टाउन ईस्ट ब्लॉक मेहंदी लगाने के लिए खसूस एहतमाम किया गया। मेहंदी में अरेबिक डिज़ाइन ट्रेंड कर रहा है। ईद की तैयारियों के लिए तमाम कितनी पुरजोश हैं, कौन कौन से डिज़ाइन ख़वातीन और लड़कियों की पसंद हैं, जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा। बिल्कुल, चांद रात से पहले का दिन और हर तरफ जो है वो ईद का शोर है और बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो रात के इस पहर जो है वो मेहंदी लगवाने के लिए आ गई हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि चांद रात जो है वो अब कल है और चांद रात को और बहुत से काम है, घर में खाना पकाना है, लेकिन उससे पहले जो है वो मेहंदी ज़रूर लगवानी थी, इसलिए जो है वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जोहर टाउन ऐश ब्लॉक पे, जहाँ पर जो है वो मेहंदी लगाने का एहतमाम खुसूसी तौर पर किया गया। बड़ी खूबसूरत सजावट के साथ जो है वो यहाँ पर एक बैठने का बंदोबस्त है, जहाँ पर बैठ के ख़वातीन जो है वो मेहंदी लगाती हुई नज़र आ रही हैं। उनसे पूछते हैं कौन कौन से डिज़ाइन उन्होंने लगा लिए हैं और फ़ीस यहाँ पर कितनी है। मुझे बताएं कि आप, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ जो है वो मेहंदी लगवा रही हैं। कितनी ज़्यादा मेहंदी जो है वो लगवा ली और कितनी मेहंदी रह गई? अभी तो मैंने फ़िलहाल स्टार्ट करवाई है, अभी लगवानी शुरू की है। इंशाल्लाह मैंने सारी जगह पूरे हाथों पे लगवानी है, तो मैं बस बैठी हुई हूँ लगवाने के लिए। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ जो स्टाइल है, ये बचपन से एक ही स्टाइल लेके आ रहा हूँ, कोई तब्दीली हुई है इसमें, कोई मॉडर्न डिज़ाइन है? स्टाइल बहुत सारे हैं, अब डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैंने अंदर के लिए वही क्लासिकल डिज़ाइन चूज़ की, क्योंकि मुझे क्लासिकल चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन आउटसाइड पे मैं ऑफ कोर्स अब मॉडर्न डिज़ाइन लगवाऊंगी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो है वो सुकून से होनी है, क्योंकि उसके बाद जो है वो ईद का शोर मिट जाना है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते को जो है वो ईद है और उससे पहले पहले तमाम मामला जो है वो ख़वातीन ने देखने हैं। उससे पहले जो है वो मेहंदी लगवाना लाजिम व मलजूम है। इस वक्त हमारे साथ और मौजूद हैं, खातून तो नहीं कहेंगे, जवान लड़की मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कितनी मेहंदी लगवा ली है। मुझे बताएं, अपने बिजी टाइम में से निकाल कर यहाँ पर आई होंगी, मेहंदी लगवा रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि डिज़ाइन अपने पसंद का लगवा रही हैं कि या जो है इन्होंने कह दिया डिज़ाइन वही लगवा रही हैं? नहीं नहीं, ये तो मैं अपनी पसंद का लगवा रही हूँ। मैंने फ़ोन से पिंटरेस्ट से निकाला है। आजकल लड़कियां बहुत शौकीन होती हैं, मतलब मेहंदी लगवाने की, तो किसी पे तो एतबार कर ही नहीं सकते इस चीज़ के लिए कि कोई अपनी मर्जी का लगाएगा। नीट एंड क्लीन से क्या मुराद है? अल्फ़ाबेट ABC सही फॉर्म में लिखे? जो फ्लावर्स हैं वो बड़े प्रिसाइजली बन रहे हों, बेसिकली यही है। आप मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखती हैं। कैसा ईद की खुशी है? कितना ज़्यादा एक रौनक है, कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा होती है, हर लड़की को ही होती है मेरे ख्याल से। वजह के बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, क्योंकि ईद खुशी का मरहला है, खुशी का लम्हा है, और इस मरहले को, इस लम्हे को खुशी से गुजारने के लिए तमाम ख़वातीन खूबसूरत डिज़ाइन से। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी, मगर ख़वातीन की तैयारी अभी भी अधूरी है। दुपट्टों की खूबसूरती के लिए लेसेस और पीकों की दौड़। किसी को अपने दुपट्टे की फाइनल टच की फिक्र है, तो कोई लेस के बगैर ईद अधूरी समझ रही है। दुकानदारों ने नए ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया। ईद की आमद में सिर्फ बस एक दिन बाकी और शहर के बाजारों में आखिरी लम्हात की शॉपिंग अपने अरूज पर है। दुपट्टों पर लेस और पीको करवाने के लिए खवातीन की बड़ी तादाद दुकानों का रुख कर रही है। दुकानदारों ने पहले से बुकिंग मुकम्मल होने के बाइस नए ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाइस खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। खवातीन कहती हैं, हम कल से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी दुपट्टा लेने को तैयार नहीं। सब कहते हैं बुकिंग पहले से फुल है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हम ना यहाँ पे बाजार आए हैं दुपट्टे पीको करवाने के लिए, और बाजार में इतना जोशो खरोश है ईद का कि हमसे ना वो दुपट्टे नहीं हमारे ले रहे। वो कह रहे हैं कि हमने पहले से लिए हुए, पहले हम वो कवर करेंगे। अपना दुपट्टा पीको करने के लिए देखे आई हूँ, और ज़ाहिर टाइम कम है, मौसम भी ऐसा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, लोगों पे भी, दुकानदारों पे भी। दुकानदारों का कहना है कि काम बहुत ज्यादा है, हमने 3-4 दिन पहले ही बुकिंग बंद कर दी थी, अब नए ऑर्डर्स देना मुमकिन नहीं है। टाइम कम है, हम लोगों ने बुकिंग की हुई है, वो काम कर रहे हैं। जो कुछ आते हैं कि अभी करके दो, तो वो काम नहीं हो रहा। इसमें बेशुमार डिज़ाइन होते हैं, कस्टमर खुद सेलेक्ट करता है, उसके हिसाब से उसका रेट होता है। ईद की खुशियों को मुकम्मल बनाने के लिए जहां खवातीन आखिरी वक्त तक तैयारी में मसरूफ हैं, वहीं दुकानदार भी काम के बोझ तले दबे नजर आते हैं। कैमरामैन खालिद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। बाजारों के साथ साथ ब्यूटी सैलून्स में भी गहमा गहमी बढ़ गई है। मोहलनवाल रोड पर वाक़ा सैलून्स में शहरियों का रश है। शहरी अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताएगा।
बिल्कुल जी, ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। जहां पर बाज़ारों में रश देखने में आ रहा है, वहीं पर सैलून्स में भी जो है वो अब रश बढ़ना शुरू हो गया है। घंटों इंतज़ार के बाद जो है वो शहरियों की जो है वो उन्हें बारी का मौका मिलता है कटिंग करवाने के लिए, फेशियल करवाने के लिए। जिस सैलून पर मौजूद हैं यहाँ पर जो है वो नौजवानों का रश है, इनसे बात भी करते हैं। भाई बताइएगा, कब से जो है वो आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्या कहेंगे? जी हमें 1.5 घंटा हो गया। हम यहाँ से बहुत सेटिस्फाई होकर जाते हैं, इसलिए हम वेटिंग पे हैं कि कोई बात नहीं, बारी आएगी और हम सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाएंगे और हमारी लुक वाइज भी जचेगी, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। ये तो 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब से इंतज़ार कर रहे हो? ये 1 घंटा होने वाला है। आप कहाँ से आए हो और क्या करवाना है आपने? मैंने कटिंग खत करवाना है। घंटों यहाँ पर जो है वो नौजवान इंतजार करने के लिए तैयार हैं अपनी बारी के लिए। दुकानदार से भी बात करेंगे कि इस मौके पर खुसूसी कोई पैकेजेस वगैरह भी दे रहे हैं कि नहीं। बताइएगा, क्या स्पेशल पैकेजेस आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ईद के मौके पर? जी सर, बहुत से पैकेज हैं, आप आएँ, इजी हो के आपको अच्छे से डील करेंगे। आपके लिए अच्छे से पैकेज आपके लिए हम लेकर आए हैं, सब भाई के लिए, ठीक है। इजीली आप आएँ, हमारे अबड़ जेंट्स पे आपके लिए बहुत प्यारे से पैकेज हैं हमारे पास। बिल्कुल जी, इस मौका पर जो है वो खुसूसी पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर। शहरी जो है इससे भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और जहां पर बाजारों में। बहुत शुक्रिया आपका। मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की खनक, खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। शहर भर के ब्यूटी पार्लर्स में गैर मामूली रश। खवातीन फेशियल, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर्स में मौजूद हैं। ईद के दिन खूबसूरत नजर आना हमारी अवलीन तरजीह है, खवातीन की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या कहना है जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया बताएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में अब एक ही दिन बाकी रह गया और वो कहते हैं ना कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो खवातीन खूबसूरत नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर रही हैं और जैसे जैसे आपको मालूम है कि ईद के दिन करीब आते चले जाते हैं, वैसे वैसे खवातीन को इस चीज की टेंशन होती है कि हमने ईद के दिन किस तरह नजर आना है। यही वजह है कि कोई मैनिक्योर करवा रहा है, कोई पेडिक्योर करवा रहा है, किसी ने फेशियल करवाना है, कोई वैक्स की तरफ जा रहा है, किसी को बालों की कटिंग करानी है, स्टाइलिंग करानी है। तो यही वजह है कि पार्लर्स के अंदर रश देखने में आ रहा है। आइए जरा आपकी बात कराते हैं पहले पार्लर ऑनर से, फिर जो यहाँ पर आई हुई खवातीन है उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कितना रश होता है आम दिनों के मुकाबले में और ईद के दिनों में, क्या फर्क होता है? जी, ईद के दिनों में जरा ज्यादा रश होता है, आम दिनों में भी होता है। ईद के दिनों में लेडीज ने काम करवाना होता है। और अच्छा, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो लेने के लिए लोग आपके पास आते हैं? जी, फेशियल है, मैनी है, पेडी है, कटिंग्स है, बच्चों की है, बड़ों की है, मेहंदी वगैरह, ये सारा कुछ करवाना। अच्छा, मैं एक चीज देख रही हूँ कि खवातीन के साथ साथ अब बच्चियों में भी ये रुझान आता चला जा रहा है कि जी माएँ खूबसूरत नजर आ रही तो हम क्यों ना आए। हाँ जी, बच्चों को ज्यादा होता है, वो कहते हैं कि माओ से पहले हमारा काम हो। अब बच्चे की कटिंग करवानी आती है तो पहले होता है मम्मा हमने भी पहले ये कटिंग करवानी है। माशाल्लाह हमारा कटिंग का बहुत काम है। ठीक है, सारा दिन ये कटिंग का ही ज्यादा काम होता है। ठीक हो गया। और फिर ये बच्चे हैं, इनकी अभी रात तक ये रहेगा। देखिए, हेयर स्टाइलिंग जो होती है उस पर बहुत ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, चाहे वो बड़े हो रहे हो चाहे वो बच्चे हो, सभी के साथ जो है वो ये मनाजर देखने को मिलते हैं। तो आइए जरा कुछ लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा, क्या सर्विसेज जो है वो आप ले रही हैं और कितना खूबसूरत नजर आना चाहती हैं ईद के दिन? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ईद में एक रोज बाकी रह गया है, जिस तरह आपने कहा है। तो सारी बात है कि ईद पे अच्छा दिखाई देने के लिए पहले पार्लर का रुख करना पड़ता है। पहले अगर अच्छे बनेंगे तो फिर ही ईद पे जो है वो बेहतर नजर आएंगे। अगर पहले ही हमारा हुलिया जो है वो इस तरह बिगड़ा हुआ होगा तो ईद पे हम किस तरह नए कपड़े पहन के जो है वो मुंह का हुलिया ना सही हो तो फिर कौन देखेगा हमें। ये चीज ईद के दिन अगर नए कपड़े पहन लिए जाएं, अच्छी ज्वेलरी पहन ली जाए, चूड़ियां पहन ली जाए, जूते पहन ली जाए, मुंह ही अच्छा ना हो तो फिर क्या खूबसूरती। बहरहाल यही वजह है कि खवातीन जो है वो ब्यूटी पार्लर्स आती हैं और सिर्फ यही नहीं, देखिए रश इस कदर होता है कि पहले से बुकिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये कोई सी आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद करीब आते ही शहर भर में खुशी और जोशो खरोश अरूज पर पहुंच चुका है। खासुसन खवातीन की बड़ी तादाद ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ दिखाई देती है। शहर के ब्यूटी सैलून्स में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। कपड़ों, जूतों और जेवरात की खरीदारी के बाद खवातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया ताकि ईद के दिन खूबसूरत और पुरकशिश नजर आया जा सके। खवातीन न सिर्फ हेयर स्टाइल तब्दील करवा रही हैं, बल्कि बालों को नित नए रंगों में रंगवाने का रुझान भी बढ़ गया है। खवातीन अपनी जिल्द को तरोताजा और चमकदार बनाने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के फेशियल्स करवा रही हैं ताकि ईद के दिन इनकी जिल्द साफ, नरम और रोशन नजर आए। ईद की तैयारियां तो हो गई हैं, अब सोच रहे हैं कि अपना कुछ चेंज कर लें, लुक इनहेंस
एनहेंस कर लें अपनी कुछ ट्रीटमेंट लेके। हेयर कट करवाना है, अभी मेरा कुछ काम रह गया थोड़ा बहुत, मैंने वो करवाना है, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स के लिए तो ये होता है कि हम लोगों को ब्यूटी इन्हेंस करनी है, अपना ब्यूटी प्यारा दिखना है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्यूटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीजन बेहतरीन चल रहा है, खवातीन का बेइंतहा रश है, जबकि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा रियायती ऑफर्स भी चल रही हैं। आप देख सकती हैं कि सैलून इस टाइम फुल बुक है और वेटिंग में सब बैठे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी रश है और इसी तरह आगे मज़ीद रहेगा। हम 3 बजे तक बैठे रहते हैं। हमारी ऑफ़र्स बड़ी अच्छी चल रही हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, डायस्टिक्स, हेयर कट, सब की ऑफ़र्स चल रही हैं और इसी तरह आओ जाए गहमा गहमी लगी हुई है और मज़े कर रहे हैं। ईद से कबल स्किन की मुनासिब देखभाल न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करती है बल्कि ये खुद इत्मीदी को भी बढ़ाती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। मीठी ईद के मीठे मज़े, ईद करीब आते ही केक डिमांड भी बढ़ गई। शहरियों का चॉकलेट, 3 मिली, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर्स पर तैयार करवाने के लिए बेकरियों पर रश लग गया। माह सयाम के आखिरी दिनों में शहरियों ने ईद की तैयारियां शुरू कर दी। अभी से बेकरियों पर केक तैयार करवाने वालों का रश बढ़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि छोटी ईद पर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, 3 मिल और पाइनएप्पल केक की ज्यादा डिमांड है। उनका कहना है कि ईद पर मिठाई से ज्यादा लोग केक खाना पसंद करते हैं। चॉकलेट कोई हाफ 2-1 करवा लेते हैं, कोई दूसरा करवा लेते हैं, कोई पाइनएप्पल का जो वाइट होता है क्रीम का वो करवाते हैं, तो इसी वजह से उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। हर साल शहरियों की बड़ी तादाद केक ऑर्डर पर तैयार करवाती है। शहरियों का कहना है कि 1 या 2 पाउंड का केक तो बआसानी बेकरी से मिल जाते हैं, लेकिन 3, 4 या 5 पाउंड के केक ऑर्डर्स पर ही मिलते हैं। केक के जो ऑर्डर्स हैं ना, वो हर जगह बुकिंग हो रही है। हम घर से निकले हुए हैं, या हम आते हैं या ऑर्डर बुक कराते हैं। मैंने आज भी कई ऑर्डर बुक कराए ताकि हमें मौके पे के मिल जाएं और हम अपने खानदान में खुशियाँ मनाएं, ठंडी मीठी ईद मनाएं। ईद तो पहले होता था कि मिठाइयाँ लोग लेते थे, अब लोग प्रेफर करते हैं कि केक ले लिया जाए, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। ईद पर मेहमानों की तवाज़ो केक और मिठाई से की जाती है। यही वजह है कि ईद पर मीठे की डिमांड 40% बढ़ जाती है। बड़ों के साथ बच्चे भी मीठा बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। ईद उल फितर की आमद पीएचए ने शहर भर को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया है। अहम चौराहों, शाहराहों पर ईद मुबारक के पैगामात आवेजा हैं। लिबर्टी चौक में वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से ईद मुबारक का पैगाम आवेजा किया गया। पीएचए ने शहरों की खुशियां दोबाला करने के लिए शहर को जगमगा दिया है। आपको बता रहे हैं ईद उल फितर की आमद पीएचए ने शहर भर को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया। अहम चौराहों, शाहराहों पर ईद मुबारक के पैगामात आवेजा कर दिए गए। लिबर्टी चौक में वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से ईद मुबारक के पैगाम आवेजा किए गए हैं। पीएचए ने शहरियों की खुशियां दोबाला करने के लिए शहर को जगमगा दिया है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बादलों ने लाहौर में डेरे डाल लिए, कुदरत मेहरबान। दूसरे रोज भी बादल टूटकर बरसे, रोजादारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश बरसेगी। पीडीएमए की पेशगोई, लाहौर में ईद के दिनों में मौसम रुमानवी रहने की तवक्को है। बादलों ने लाहौर में डेरे डाल लिए, कुदरत मेहरबान। दूसरे रोज भी बादल टूट कर बरसे, रोजेदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश बरसेगी। पीडीएमए ने पेशगोई कर दी। डीजी पीडीएमए इरफान काठिया के मुताबिक ईद उल फितर के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा। तारीख तक इसी तरह वक्त के पूरे पंजाब में बारिश रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब इस सिस्टम के बाद पूरे पंजाब में मौसम न सिर्फ खुशगवार है बल्कि एक दफा फिर हल्की फुल्की सर्दी की वो वाइब्स हैं। तो ये अब 25 तारीख तक इसी तरीके से सूरत हाल रहेगी और उसके बाद फिर एक खुश्क स्पेल, थोड़ा ड्राई स्पेल आएगा। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि शहरी खराब मौसम में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हर साल की तरह इस साल भी ईद के मौके पर कोरे नोटों का हसूल मुश्किल हो गया है। स्टेट बैंक के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त का धंधा अरूज पर पहुंच गया। मुख्तलिफ नए नोटों की फी कॉपी पर 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक वसूल किए जाने लगे।
ईद करीब आते ही ईदी देने के लिए नए नोटों की याद आई तो शहरियों ने स्टेट बैंक की इमारत के बाहर ब्लैक में नए नोट फरोख्त करने वालों से राब्ता किया। ईद पर बच्चों को नए नोटों की ईदी दी जाती है। 10 रुपए के नए नोटों की कॉपी 1000 के बजाय 1600 रुपए, 20 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 2000 के बजाय 2700 रुपए, जबकि 50 रुपए के नए नोटों की कॉपी 1400 से 1600 रुपए जायद में फरोख्त हो रही है। 100 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 2000 रुपए इजाफे के बाद 12000 रुपए, 500 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 2000 से 2500 रुपए जायद में फरोख्त, जबकि 1000 रुपए वाले नोटों की कॉपी 2500 रुपए जायद में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि बैंकों से नए नोट नहीं मिले, इसलिए ब्लैक में नोट खरीद रहे हैं। ईद आ रही है, बच्चों की डिमांड है, हमने नए नोट लेने हैं। नए नोट लेने के लिए आए हैं, उनको से आके पूछा है, उनको रेट ही इतने ज्यादा हैं कि वो जो बात है वो पहुंच से दूर हो पड़ी है। 1300 रुपया कापी का मंग रहे हैं ते बहुत ज्यादा ने। उन्होंने क्या भी घट कर लवो तो कहते नहीं सानू 12 नहीं खांदा, अगर तुसी 100 घट लेना आगे चले जाए। कल आए थे, कल 100 वाली कापी पूछा 10,300 की कहते दे देंगे, आज पूछा 11,200। 10 वाले बंडल का तो हाल ही छोड़ देना, 16,500 का बंडल दे रहे हैं 10 कॉपियों का। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ स्टेट बैंक को भी ईद के दिनों में नए करेंसी नोट बगैर इजाफी पैसों के फराहम करने का पाबंद करे। कैमरामैन अली अदनान और एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम की नई हदबंदियाँ, यूनियन काउंसिल्स के कवायद 2026 का मुसवदा तैयार। हदबंदी में मरदमशुमारी ब्लॉक को तोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हदबंदी में सड़कें, सहूलियात और राबिता निज़ाम भी मद्देनजर रखा जाएगा। 10% आबादी का फार्मूला अपनाने की तजवीज़ पेश की गई है। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम को आज से 9 मुनासम करने के मंसूबे के तहत यूनियन काउंसिल्स कवायद 2026 का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। मुसवदे के मुताबिक सूबा भर में मजमूई तौर पर 6637 यूनियन काउंसिल्स कायम करने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें 2496 शहरी और 4141 दही यूनियन काउंसिल्स शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक हदबंदी का अमल इलेक्शन कमीशन के तयशुदा उसूलों के तहत मुकम्मल किया जाएगा और मरदमशुमारी ब्लॉक्स को तोड़ने की इजाजत नहीं होगी, जबकि आबादी के तनासुब में 10% फार्मूला अपनाते हुए जोग्राफियाई यकसानियत, सड़कों, सहूलियात और राब्ता निज़ाम को भी मद्देनजर रखा जाएगा। हुकाम का कहना है कि किसी भी यूनियन काउंसिल की हदूद बलाई सतह की लोकल गवर्नमेंट की हदूद से तजावुज नहीं करेंगी और हुकूमत यूनियन काउंसिल्स की तादाद पहले ही नोटिफाई कर चुकी है, जबकि नई हदबंदी से आइंदा बल्दियाती इंतखाबात का नक्शा तब्दील होने का इम्कान है और इसे अवामी सहूलत और मौसर गवर्नेंस के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुल्की फ़ज़ाओं को महफूज रखने के लिए महकमा दाखिला की अहम पेशरफ्त सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब में सिविल डिफेंस को एंटी ड्रोन गन्स फराहम करेगा। सिविल डिफेंस के बॉम्ब डिस्पोजल एंड एंटी ड्रोन स्क्वाड की NRTC से तरबियत दी जाएगी। मुल्की फ़ज़ाओं को महफूज रखने के लिए महकमा दाखिला ने पंजाब सिविल डिफेंस को जदीद एंटी ड्रोन गन फराहम कर दी है। एंटी ड्रोन गन EMG 150 दुश्मन के किसी भी ड्रोन को बआसानी फ़ज़ा में नकारा बना सकती है। एंटी ड्रोन गन 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ड्रोन्स को जाम करके गिराने की सलाहियत रखती है। सिर्फ 6 किलो वजन की एंटी ड्रोन गन दूर फासले तक ठीक निशाना लेने की सलाहियत रखती है। गन में 8 फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी ड्रोन को गिराने के लिए काफी हैं। गन हाई गेन डायरेक्शनल एंटीना के जरिए दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। गन की मदद से दुश्मन ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल में मदाखलत करके उसे फौरी लैंड या नकारा बनाया जा सकता है। महकमा दाखिला पंजाब भर में सिविल डिफेंस को एंटी ड्रोन गन्स फराहम करेगा। सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजल एंड एंटी ड्रोन स्क्वाड की NRTC से तरबियत करवाई जा रही है। पहली एंटी ड्रोन गन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रावलपिंडी डिवीजन के हवाले की गई। महकमा औकाफ ने लाहौर में 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। दरबार हज़रत मियां मीर और मस्जिद की बहाली की स्कीम शामिल है। दाता दरबार अस्पताल की मुरम्मत और नए आलात की खरीदारी भी होगी। ईशान शाह दरबार रेलवे स्टेशन की तामीर और मुरम्मत बीबी पाक दामन पर कॉफ़ी टेबल और बुक्स फराहम की जाएंगी। महकमा औकाफ ने लाहौर की 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। दाता दरबार अस्पताल को भी जदीद आलात के साथ अपग्रेड किया जाएगा। महकमा औकाफ की मंजूर होने वाली स्कीमों में दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह और मस्जिद की बहाली की स्कीम शामिल है। दाता दरबार अस्पताल की मरम्मत और नए आलात की खरीदारी भी की जाएगी। दाता दरबार अस्पताल के लिए आंखों, सर्जिकल, गायनी और मेडिकल वार्ड के लिए सामान खरीदा जाएगा। स्कीमों में ईशान शाह दरबार रेलवे स्टेशन की तामीर और मरम्मत का मंसूबा भी शामिल है। दाता दरबार बादशाही मस्जिद, हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह और बीबी पाक दामन दरबार पर कॉफी टेबल और कुतुब बीनी के लिए खसूसी कमरा फराहम किया जाएगा।
NA-130 का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का फैसला। अपग्रेडेशन के बाद ये शहर का पहला मॉडल हल्का कहलाएगा। हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारी LDA इंजीनियरिंग विंग 2 को सौंप दी। डिज़ाइन और तखमीना लागत का मुकम्मल प्लान DG LDA को पेश कर दिया गया है। NA-130 को शहर का पहला मॉडल हल्का बनाया जाएगा। सरकारी स्कूल, इमारतें, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सड़कें अपग्रेड होंगी। LDA ने NA-130 के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। हुकूमत पंजाब ने जिम्मेदारी LDA इंजीनियरिंग विंग 2 को सौंप दी है। NA-130 को मॉडल हल्का बनाने का तखमीना 16 अरब लगाया गया। डिजाइन और तखमीना लागत का मुकम्मल प्लान पेश कर दिया गया। मंसूबे के डिजाइन और लागत की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब देंगी। शहर का पहला मॉडल हल्का मुकम्मल होने के बाद दायरा कार दूसरे हल्कों में फैलाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि NA-130 से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ MNA है। हल्के में वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद MPA मुंतखब हैं। मैट्रिक इम्तिहान में सैकड़ों असातिज़ा का ड्यूटियों से इनकार पर निगरान अमले की कमी पैदा होने का खदशा है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन का एक्सट्रीम हार्डशिप के तहत इकदाम। 8,271 असातिज़ा के तबादलों के ऑर्डर जारी कर दिए गए। मैट्रिक इम्तिहान में सैकड़ों असातिज़ा ने ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया। ड्यूटियों से इनकार पर निगरान अमले की शॉर्टेज पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 134 असातिज़ा की जवाब तलबी कर ली। मज़कूरा असातिज़ा को मैट्रिक इम्तिहान में बतौर सुपरिटेंडेंट्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स लगाया गया था। ड्यूटी ऑर्डर वसूल न करने पर मुतल्लिका असातिज़ा की जवाब तलबी की गई है। स्कूल सरबराहान को मुतल्लिका असातिज़ा को फौरी ड्यूटी ऑर्डर्स वसूल करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक्सट्रीम हार्डशिप के तहत 8,271 असातिज़ा के तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए। 1523 से शादीशुदा खातून के खावंद के अजला में तबादलों के ऑर्डर्स किए गए। वेटलॉक की बुनियाद पर 4,139 असातिज़ा के तबादले हुए। 868 तलाक याफ्ता बेवा असातिज़ा के तबादले किए गए। सिंगल पेरेंट की बुनियाद पर 256 असातिज़ा के तबादले किए गए। मेडिकल पर 847 और मुख्तलिफ कैटेगरी के असातिज़ा के 629 तबादले हुए। महकमा स्कूल एजुकेशन को तबादलों के लिए 19,000 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई। जेलों में 29वें रोजे से ईद के दूसरे रोज तक काम मुलाकात की इजाज़त। अपने प्यारों से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में मुलाकाती कैंप जेल पहुंच गए हैं। तमाम जेलों में मुलाकात के लिए आने वालों की कैदियों से लाज़मी मुलाकात करवाई जाएगी। जेलों में ईद के दूसरे रोज तक आम मुलाकात की इजाजत दे दी गई। ईद के दिनों में मुलाकात का रश 3 गुना ज्यादा हो जाता है और रोजाना 3,000 तक मुलाकातियों की तादाद पहुंच जाती है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स मुलाकात के अमल को खुद मॉनिटर करेंगे और मुलाकात शेड में मौजूद रहेंगे। मुलाकाती जेलों में मुकीम अपने प्यारों के लिए खाना, कपड़े और सामान भी जमा करवा सकेंगे। मुलाकात से मुतल्लिक शिकायत के अंदराज के लिए कंप्लेंट नंबर्स पर मुश्तमिल कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि फौरी अजाला किया जा सके। कंप्लेंट मैकेनिज्म को इन्हांस किया गया है। ये मेरे पास कार्ड है जो तकरीबन हमने नंबर्स भी जैसे ये अवेजा किए हुए हैं, प्लस ये हम लोग हर विजिटर को जो है वो तकसीम भी कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई किस्म की कोई परेशानी मुलाकात के हवाले से, रिहाई के हवाले से तो है तो वो उसके ऊपर दोनों आई साहब और होम सेक्रेटरी साहब के नंबर भी जो है वो लिखे हुए हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मुलाकातियों का कहना था कि ईद के मौके पर वो अपने प्यारों के लिए कपड़े और सामान जमा करवा रहे हैं, जबकि मुलाकात के लिए इंतजामात बहुत अच्छे किए गए हैं। मेरे 3 बेटे थे, 2 बेटे जवान फौत हो गए। एक बेटा मेरा अंदर है डिग्री केस में, कोई खास केस नहीं है उसका, लेकिन मैं उसके लिए चीजें लेके स्पेशल मिलने के लिए इंतजाम बहुत अच्छा है यहाँ पर। ईद पे हमारे साथ हमारा भाई होता तो हमें अच्छा लगता है। अब हम यहाँ पे उसके लिए कपड़े लेकर आए, अच्छा बहुत अच्छा हमें प्रोटोकॉल यहाँ पे मिलता और कोई किसी किस्म की बदतमीजी वगैरह नहीं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा हमें, साफ सुथरा, इस तो ज्यादा तरीके से माशाल्लाह बड़े खुश हैं। ईद के तीनों दिनों के लिए खुसूसी मेन्यू तरतीब दिया गया है, जिसमें नाश्ते में सवैयां, दोपहर और शाम के खाने में कोरमा और पुलाव दिया जाएगा। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अली साही, सिटी 42। लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल मनसूबे के हवाले से इजलास। सदारत मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने की। इजलास में शहर की तारीखी शिनाख्त की बहाली और जदीद सहूलियात के फ्राहमी का जायजा लिया गया। इजलास में लाहौर की सड़कों और गलियों के पुराने नाम बहाल करने का असूली फैसला किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के नामों से यूनिवर्सिटी का लाहिका ख़त्म करके उनके असल नाम बहाल किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मौजूदा मजमूई सियासी, बैनुल सूबाई हम आहंगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली दोबारा ख्याल किया गया। दोनों रहनुमा ने मौजूदा हालात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और इदारों के दरमियान बेहतर रवाबत की अहमियत पर जोर दिया।
सूबाई वज़ीर सेहत और पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ख्वाजा सलमान रफीक ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया है। थैलेसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पॉपुलेशन ख्वाजा इमरान नज़ीर और सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ख्वाजा सलमान रफीक ने मरीज बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। तहाइफ के हसूल पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। चेयरमैन अमन कमेटी पंजाब मियां मोहम्मद अजमल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन का दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन का दौरा तदरीसी अमल का जायजा लिया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन वक्त की ज़रूरत है, जबकि पहली बार महकमा औकाफ को डिजिटलाइजेशन की जा रही है। सूबाई वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन का दौरा किया। इदारे के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। चिल्ड्रन अस्पताल में कुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए जदीद हेयरिंग एड का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका क्लिनिक और अलराफे फाउंडेशन का यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज से इश्तराक कुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए चिल्ड्रन अस्पताल में जदीद हेयरिंग एड की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक, MD चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टीपू सुल्तान, आपका क्लिनिक और अलराफे फाउंडेशन की सरबराह प्रोफेसर शहला जावेद अकरम, प्रोफेसर नासिर राना, डॉक्टर अबूजर समेत डॉक्टर्स मौजूद थे। प्रोफेसर शहला जावेद अकरम ने कहा कि बच्चों को लगाए जाने वाला हेयरिंग एड आला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हामिल है, जिसकी लागत 1.5 लाख रुपए है। फाउंडेशन मुखैर हजरात की मदद से तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हेयरिंग एड इज़ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम्स कि ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कंफर्टेबल भी नहीं होते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं है, फॉलो अप भी प्रॉपर नहीं है, सो मैनी इफ्स एंड बट्स हैं इसके अंदर। तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और फिर हमने जो सिलेक्ट की जो कंपनी है अमेरिकन स्टार की, वो वेल रिनाउंड है और बैकअप उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रोफेसर मसूद सादिक का कहना है कि जल्द तशखीस और हेयरिंग एड डिवाइस मिलने से बच्चे नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं और कॉकलियर इम्प्लांट के महंगे इलाज से भी बचा जा सकता है। एक तो वो है जो पैदाइशी तौर पे है, आपको पता है हमारे मुल्क में कंसैंग्विनिटी बहुत ज़्यादा है, जो नस्ल दर नस्ल हम आपस में शादियां करते हैं, तो इन बच्चों में ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक्वायर्ड कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे पैदाइश के वक्त बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसको बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, खुदा न खास्ता मेनिंजाइटिस हो गया, या और इस तरह की कोई अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या ब्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उन बच्चों में भी हेयरिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है और इसमें हमें हुकूमत पंजाब की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमेशा से रही है और हम वाहिद सेंटर है जो कि कॉकलियर इम्प्लांट किसी भी पब्लिक सेक्टर में कर रहे हैं। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि पाकिस्तान में खानदानी और कजन मैरिज बच्चों में कुव्वत समात की बीमारी की वजह है। हेयरिंग एड जल्द मिलने से मुतासिरा बच्चों की कुव्वत समात और गोयाई बहाल होगी और वो मुआशरे का कारआमद फर्द बन सकेंगे। हम कॉकलियर इम्प्लांट जो हमारा 20 लाख का है, उसके बजाय अगर 1.5 लाख की हम हेयरिंग एड एक अच्छी क्वालिटी की, ज़रूर अच्छी क्वालिटी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हेयरिंग एड है वो लगा देंगे, तो एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट करेंगे उसी प्राइस में। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ दोनों चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। इफ्तिताह के मौके पर हेयरिंग एड सहूलत का दायरा मजीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। अल-फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच में प्री ईद फेस्टिवल कई प्रोडक्ट्स पर खसूसी डिस्काउंट ऑफर्स दी गई। कई मसनूआत पर ईद के मौके पर खसूसी बचत ऑफर्स भी दी जा रही हैं। अल-फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पर सारिफीन के लिए प्री ईद फेस्टिवल लगाया गया है। मेकअप प्रोडक्ट्स, मर्दाना सूट्स, बच्चों के कपड़ों पर खुसूसी डिस्काउंट दिया जा रहा है। बच्चों के जूतों, परफ्यूम्स और चश्मों पर भी खुसूसी बचत ऑफर दी जा रही है। अल-फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर बिलाल का कहना है कि ईद की खुशियाँ कस्टमर्स के संग मनाएंगे, इस वजह से खुसूसी बचत ऑफर का एहतमाम किया गया है। हम लोग हमेशा अपने मोअज़्ज़िज़ कस्टमर के लिए ईद के जो है पुरमसरद मौके पर हम लोग बेशुमार डिस्काउंट पहले भी देते हैं और हमेशा देते हैं, देते रहेंगे। और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है कि कस्टमर खुशियाँ मनाएं अल-फतेह के संग। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के साथ एक अच्छे मुनासिब रेट भी दें। कॉस्मेटिक सेक्शन में हमारे अप टू 70% ऑफ है, बाकी किड्स वेयर पे, किड्स शूज़ पे अप टू 50% तक ऑफ है, मेंस अपैरल पे अप टू 50% ऑफ है। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद डिस्काउंट ऑफर्स से फायदा उठाने के लिए अल-फतेह स्टोर हुसैन चौक ब्रांच पहुंच रही है। सारिफीन की जानिब से अल-फतेह स्टोर के मयार और खुसूसी डिस्काउंट को सराहा जा रहा है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड है। मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। मेरी मम्मा, मेरी दादो सब यहीं से परचेजिंग करती थी और अब हम 3rd जनरेशन है जो अल-फतेह के साथ चल रहे हैं और हम यहाँ से बहुत कुछ बाय करते हैं।
اور یہاں پر بہت کچھ ملتا ہے اور ہر چیز بہت، ان کا اسٹاف بہت اچھا ہے، ان کے جو سینئر اسٹافس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اچھے سے کوپریٹ کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اور ان کی جو پروموشنل آفرز لگتی ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ الفتح اسٹور پر اسپیشل عید آفر چاند رات تک جاری رہے گی، جس سے تمام کسٹمرز مستفید ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین اسد کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ الفتح اسٹور جوہر ٹاؤن برانچ میں عید شاپنگ فیسٹیول کا انعقاد، خریداری کرنے آئی خواتین کے لیے فری مہندی چوڑیوں کا اسٹال لگایا گیا، کاسمیٹکس اشیاء پر 70% تک رعایتی آفر بھی لگائی گئی ہیں۔ الفتح اسٹور جوہر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے خریداری کرنے آئی خواتین کے لیے خصوصی عید شاپنگ فیسٹیول سجایا گیا۔ عید فیسٹیول میں خواتین کے لیے فری مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز لگائے گئے۔ مہندی سٹال پر خواتین اور بچیوں کا رش دیکھنے میں آیا، جہاں وہ اپنے پسندیدہ ڈیزائن بنوانے میں مصروف رہیں۔ خواتین نے عید شاپنگ فیسٹیول سجانے پر الفتح اسٹور انتظامیہ کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ایسے اقدامات نہایت خوش آئند ہیں۔ اس سے شاپنگ کا تجربہ مزید خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں شاپنگ کرنے آئے تھے تو میں نے یہاں سٹال دیکھا، یہاں فری مہندی لگوا رہے ہیں، فری چوڑیاں دے رہے ہیں اور عید کو بہت اچھا کر دیا ہے۔ تو میں یہاں ویسے میں مہندی لگواتی نہیں ہوں، بٹ الفتح کی طرف سے یہ فری مہندی فری چوڑیاں تھی تو میں الفتح کو تھینک یو بولنا چاہ رہی ہوں۔ عید الفطر کے موقع پر الفتح اسٹور میں کاسمیٹکس اشیاء پر 70% تک خصوصی رعایت بھی دی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر صارفین کو بہترین سہولیات اور معیاری اشیاء رعایتی قیمتوں پر فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ الفتح بہت سی ایکسائٹنگ آفرز لے کے آیا ہے، جو کہ ہماری عید کے ایونٹ کے حوالے سے فیمیل کے لیے اسپیشل آؤٹ شوٹ پہ جو چوڑیوں کا سٹال لگا ہے، فری آف کاسٹ مہندی لگ رہی ہے اور کسٹمر کی انگیجمنٹ ایکٹیویٹی بہت سی ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے عید کے ریلیونٹ ایونٹ کے حوالے سے اوپر اپنے کاسمیٹک میں اپ ٹو 70% ڈسکاؤنٹ لگا ہے۔ لکی ڈرا ہے وہ ہے 29 اپریل کو، مارچ کو، اور اس میں بائک دیں گے اور بہت سے مختلف گفٹ ان کے کسٹمر کے لیے لکی ڈرا کے تھرو نکالیں گے ہم ان کو۔ الفتح اسٹور شاپنگ فیسٹیول چاند رات تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین زاہد عظیم ملک کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ لاہور اسٹیشن کے لنڈا بازار میں بھی شہریوں کا رش، شہریوں کی بڑی تعداد لنڈا بازار شاپنگ میں مصروف ہے۔ لنڈا بازار میں بھی کوئی چیز سستی نہیں مل رہی، شہریوں کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے زین متنی سے۔ جی زین۔ عید الفطر جو ہے وہ قریب ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس وقت موجود ہوں لنڈے بازار میں، جہاں پہ شہریوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہے۔ کیا لیا آپ نے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں لیا، رش بہت زیادہ ہے، مہنگا بہت زیادہ، ایسے ہی 7,000 کا 8,000 کا شوز دے رہے ہیں، تو اب کیا کریں، جو غریب وہ عام وہ تو لے نہیں سکتی، تو لے رہے ہیں پھر جس نے لینا پھر۔ جی اس وقت میرے ساتھ اور بھی شہری موجود ہے۔ ہاں جی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لسٹ بنا رہے ہیں؟ میں نے اپنا افطاری کے لیے چیزیں لے کے آیا تھا، اس کا لسٹ بنا رہا ہوں۔ اچھا اس کی لسٹ بنا رہے ہیں۔ عید کے لیے کیا شاپنگ کی آپ نے؟ بس عید کے لیے بچوں کے لیے شاپنگ کیا، مہنگائی کا دور ہے، کیا شاپنگ کریں۔ اور یہاں پہ باقی بازاروں کی نسبت یہ لنڈا بہت سستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ اگر کسی شاپ میں لگا ہوا ہو، یہ دیکھو یہ شوز آپ کے سامنے ہے، ادھر 1200 روپے کا سیل لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے کیمرہ مین آپ کو دکھا بھی سکتے۔ تو باقی بازاروں کے نسبت میں یہ لنڈا بازار لیکن سختی بہت ہے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں رونق بالکل کم نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین بالکل عید کی جو ہے وہ جی زین بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر بات کریں دارالشفقت میں یتیم بچوں کے لیے خصوصی افطار کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بچوں میں عید کے تحائف اور عیدی بھی تقسیم کی گئی۔ اہتمام پہل آرگنائزیشن مدر فاؤنڈیشن اور چیئرمین پائونیئر بزنس مین گروپ علی حسام اصغر کے اشتراک سے ہوا۔ اس موقع پر چیئرمین دارالشفقت سہیل بٹ، عبداللہ ذیشان بیگ، جمیل بھٹی، سمین اصغر اور حنان اصغر سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں سحر کائنات، حسیب مسعود، ڈاکٹر نعمان علی حیدر، جہاں زیب اشفاق اور زینب اسحاق بھی موجود تھے۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فہیم الرحمان سہگل کی سالگرہ شہر بھر کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سہگل کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فہیم الرحمان سہگل نے تاجر قائدین کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تاجر برادری نے فہیم الرحمان سہگل کو مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ وہ کاروباری برادری کی خدمت اور ملکی معیشت کے استحکام کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ فاؤنٹین ہاؤس میں رہائش پذیر خواتین عید کی خوشیوں کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ایس کے فاؤنڈیشن اور شائستہ خاور کی جانب سے مہندی کی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔
फाउंटेन हाउस में मुनक़िदा तकरीब में मेहंदी डिजाइनर्स ने खवातीन के हाथों पर दिलकश मेहंदी सजाई। शाइस्ता खावर की जानिब से चूड़ियों और फलों के तोहफे भी पेश किए गए। डॉक्टर समीना आफ्ताब का कहना था कि शाइस्ता खावर खवातीन के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शाइस्ता और उनकी टीम यहाँ पे एक खूबसूरत रंगारंग महफिल हमारी फीमेल पेशेंट्स जिनको हम यहाँ मेंबर्स कहते हैं उनके लिए ही सजाती हैं, और ये इतना खूबसूरत कलरफुल इवेंट होता है जो बहुत अरसे तक ये मेमोरीज़ हमारे जो पेशेंट्स हैं जो जिनको हम मेंबर्स कहते हैं उनके दिमाग में दिलों में रहते हैं। मेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर टीना मंजर ने भी तकरीब में शिरकत की और खवातीन के साथ खुशियों में शरीक हुई। शाइस्ता मैंने देखा कि ये कर रही है साल से, तो मैं इसके साथ भी जुड़ गई कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि किसी को आगे अगर आप खुशियाँ बांट सकते हैं या उनकी कोई बात सुन सकते हैं, उनकी किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, मॉनेटरली फाइनेंशियली भी आप यू कैन गिव अ डोनेशन, तो ये सारा कुछ अगर आप कर सके तो आपको करना चाहिए। शाइस्ता खावर का कहना था कि वो कई सालों से हर ईद पर फाउंटेन हाउस की मेंबर खवातीन के लिए चूड़ियां, मेहंदी और फ्रूट्स लाती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि इन लोगों को ईद की खुशियाँ जो हैं फाउंटेन हाउस में ही मिल जाएं, और इसके अंदर हम लोगों ने इनकी जो बाकायदा लिस्टें ली होती हैं, हर एक का नाम, उसका हाथ का साइज़, उसकी कलर चॉइस चूड़ियों की, और उसके हिसाब से फिर ये सारा ऑर्डर होता है। और इनके लिए चूड़ियाँ हैं, फिर फ्रूट्स जो हैं वो इनके लिए लाए हैं, और मेहंदियाँ लगाने के लिए प्रोफेशनल्स बुलाए हुए हैं। फाउंटेन हाउस की रिहायशी खवातीन ने ईद की तैयारियों पर खुशी का इजहार किया। मेहंदी लगवाई है, अच्छा लग रहा है मेहंदी लगवा के, तैयार होके ईद मनाऊंगी, नए नए कपड़े पहनेंगे, अच्छा लग रहा है, नए नए कपड़े मेकअप के तैयार होते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेंबर खवातीन को तोहफे भी दिए गए। कैमरामैन राना अजहर के साथ उस्मान खादिम कम्बो, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने आर्मी हॉकी और फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। कोर कमांडर लाहौर वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी ने मैच देखे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर यूनिवर्सिटी को 0-1 से शिकस्त देकर आर्मी इंटरवर्सिटी मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। हॉकी फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी ने लाहौर कॉलेज बाय वुमेन यूनिवर्सिटी को 0-2 से शिकस्त दी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सईद फयाज हुसैन शाह और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने लाहौर कैंट में फाइनल मैच का मुशाहिदा किया। इस मौके पर शिरकत करने वाली यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सईद फयाज हुसैन शाह ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और फुटबॉल टीम को टीम ट्रॉफी और 20 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा है। गुलबर्ग हेड ऑफिस में हीको डेयरी आइसक्रीम और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान PSL 11 के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। CEO हीको मोहम्मद मोहसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के CEO एहसन लतीफ़ ने MOU पर दस्तखत किए। PSL सीजन 11 में हिको डेयरी आइसक्रीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेन स्पॉन्सर होगा। हिको डेयरी आइसक्रीम अपने पार्टनर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मिलकर क्रिकेट के फरोग के लिए काम करेगा। CEO हिको मोहम्मद मोहसिन का कहना था कि हिको आइसक्रीम बनाने वाली पहली पाकिस्तानी कंपनी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मिलकर क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से टाइटल स्पॉन्सर हैं फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बीइंग पाकिस्तानी ब्रांड। इस सपोर्ट को सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ होता है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।